The last part being conductometric titrations. Okay. Conductometric titration relates with the relative speeds or relative motion or how fast they are moving in aqueous solution. So especially when it comes to all of these positive ions and negative ions, if you compare them in aqueous solution, then depending upon its mobility, we can say how much molar uh, conductivity they will possess. Okay. So if you have more amount of molar conductivity, we can say that it has more ionic mobility. Clear? So just try to relate it that way. और ये mobility का और molar conductivity का exactly formula क्या है वो end में पढ़ेगा. As of now, all we need to know is more the mobility, more is the molar conductivity. Okay. Consider this. Suppose if we compare to that of H plus, Na plus, all of this at a constant concentration, any constant concentration of maybe 1 molar. So if we take 1 molar of all of these and compare their molar conductivity, then this will be the molar conductivity for H plus. तो आपने एक notice किया होगा that H plus, NH4 plus, these have the highest values. Okay. There are two reasons for it. See, H plus और NH plus की values ज़्यादा क्यों है? Suppose अगर ये कोई conductometric cell है, ठीक है, and इस तरफ and one end I have anode and the other end I have cathode. Okay. Now here in this entire solution, if this entire thing is the solution here, correct? In this we have water molecules, and suppose there is one H plus here at this positive terminal, and it has to move towards this H plus at the negative terminal. Unlike the other ions, suppose if Na plus is competing with it, और दोनों को ये cathode reach करना है, correct? Unlike Na plus, here what happens, this same Na plus has to move all the way here and then get deposited on the sodium. But when it comes to H plus has to just attack one of the nearest water molecules. So H plus will connect here, and as soon as it gets connected here, this will become H3O plus. And this H3O plus will again hit the next water molecule, and this will convert into H3O plus, H2O plus H3O plus. Clear? And this H3O plus will again hit, you can think like, you know, खो कैसा खेलते हैं, खो उसने खो दिया तो next वाला भागेगा, right? So that way H3O plus will again connect it to a next molecule of H2O, and this will become H2O plus H3O plus again. So this molecule has become H3O plus. Similarly, this molecule has become H2O here. So like this, H plus is going to get transferred from one end to the other end, not by complete ionic mobility, only by direct exchange with water. That is why the speed of H plus ions will be much faster. Has this logic clear to everybody? And the same goes for NH4 plus also. In NH4 plus also, NH4 plus as soon as it hits, the next molecule will become H2O, and from there onwards, it will take off easily. Got it? So H plus and NH4 plus will have exceptionally high molar conductivity because of the indirect movement of H plus from anode to cathode. Now the same logic can be applied even if you have OH minus. But compared to that of H plus is too small an ion because it is just a proton. But OH minus is bigger in size. So even that will exchange the same way like this. We have OH minus will get connected with water. It will become H3O2 minus, and which connects with the next water molecule, and this will become H2O, and the next molecule will become H3O2 minus, and that will keep continuing. Okay. So the same logic applies to OH minus, but compared to H plus, obviously the speed is lesser if you see that. Okay. And eventually, if you see, if the size or the ionic charge is way higher, then that will become a dominating factor.
correct? So if it is 4 minus 3 minus, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा या इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो भी आपका आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाता है. So you can say that ionic mobility increases mostly because of two cases. One is the charge. More the charge, more is the ionic mobility or more is the molar conductivity. Second point is whether there is any H plus producing species or OH minus producing species. If they are H plus and OH minus producing species, then also they will have very high conductivity. So इतना याद हो जाएगा सबको. So based on the values only, we have to discuss rest of the things. ठीक है? So when it comes to acid base reaction, you always check क्या कोई H plus produce हो रहा है, क्या कोई OH minus produce हो रहा है, और क्या कोई बहुत हाई चार्ज वाला आयन प्रोड्यूस हो रहा है. बस इतना देखेंगे तो हमको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाउ द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ओके, नाउ सी, in general molar conductivity of divalent cation is greater than the monovalent cation, unlike if it is not producing H plus and OH minus. Okay, and since water is a medium, H plus and OH minus will have very large with respect to the monovalent cations and anions. Okay, and in general, or increasing the charge of the ion, the value of the lambda m increases. So I think this all makes sense, everyone. Okay. Yes, sir. Now apply this logic. Let us apply this logic to different titrations. Correct. So the measure of conductivity in our regular titrations is what we call it as conductometric titrations. Okay, so this is what we call it as conductometric titrations. Now it is based on the fact that titrations, one of the ion is replaced by the other, correct? And because the ions get exchanged, their ionic mobility will change. Okay, let me show you how. For example, mostly हम लोग किस तरह के titration लेते हैं? We usually deal with 4 titrations: strong acid, strong base, weak acid, strong base, strong acid, weak base, and weak acid, weak base. Correct? And eventually redox titrations. बस यही 4-5 titration हमारे पास हो सकते हैं. Starting with first strong acid, strong base, HCl plus NaOH. And this is how the conductometric cell is. ये जो हम लोग फ्लास्क लेते हैं उसी को सेल बना दो, और उसके ऊपर ब्यूरेट है, और ब्यूरेट में से NaOH उसके साथ डिसॉल्व होता है. सो यू कैन सी दैट एक बीच में एक स्टिरर रख दो ऐसे, वो स्टिरर घूमते रहेगा दोनों तरफ, and as soon as the NaOH gets added with HCl, it will start mixing, correct? And usually we will add some small drop of indicator, 1 or 2 drop of indicators. It could be phenolphthalein or it could be methyl orange. Both will give you good reading when it comes to strong acid, strong base. Now students, how does the lambda value is changing? Because this is entire reading is all about lambda m value. Okay, so initially when I take a dilute HCl, initially when we take a dilute HCl, this is about volume of NaOH, correct? In that case, we will have some amount of value here, and that value will be lambda m of HCl, correct? This is pure value of lambda m of HCl before adding NaOH. Now, as we start adding NaOH, what will happen? Whether the lambda m will increase or decrease? इसको समझने के लिए I'll just make you learn through simple numbers. You see, HCl plus NaOH is going to give us H2O plus NaCl. Imagine I have 20 particles. 20 particles means I have 20 H plus ions and 20 Cl minus ions. And here I've added 2 एक drop मतलब 2 particles. So 2 particles includes 2 OH minus and 2 Na plus, right? Now, as soon as the addition happens, what is the reaction that is taking place? This 2 OH minus, right? Sorry, this out of this 20, this 2 H plus and 2 OH minus will get combined. So I'll have minus 2 H plus. So 18 H plus will be left out in the solution, and
2OH minus will be completely lost because that is limiting reagent, वो तो पूरा HCl के साथ react हो जाएगा, and 2Na plus will be left over, correct? So in the final solution, what we have is that number of cations and number of anions, if you see that, number of cations are 18H plus 2Na plus, and number of anions will be 20 Cl minus. Can I say the initial number of ions and now the number of ions are same? Initially we had 20 H plus ions and 20 Cl minus ions before adding NaOH. And after NaOH reaction with one or two droplets, I'm still having 18 plus 2, 20 cations and 20 anions. So which means number of ions wise there is no increase or decrease. All of you understood that, right? But what happened? The H plus quantity got reduced, you know, because earlier it was 20, now it is only 18. In short, during the titration, the H plus ions are getting replaced by Na plus. That is the whole thing which is happening here, right, students? Now tell me, based upon the table which I shared, H plus ion and Na plus, which will have higher mobility? H plus ion. H plus. अगर H plus कम हो जाएगा और वो सीधा सीधा Na plus से रिप्लेस हो जाएगा तो उसका ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा, and that is what you will see here. So now what would happen? Slowly there will be a decrement in the molar conductance here. इस तरह से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. Clear, students? So I'll show decrease with this arrow. Right, इस तरह से ये डिक्रीज हो जाएगा. ओके, अच्छा सर ये क्या लीनियरली होता है? एग्जैक्टली लीनियर होता है? नॉट नेसेसरी. इट कुड बी स्लाइटली वेवी एंड कर्वी आल्सो, बट as a broad idea about lambda we take it as linear. Okay, हो सकता है ऐसे भी हो जाए थोड़ा सा, but for our simple purposes we say कि lambda value linearly decrease हो. Clear? Now students, एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर it would reach the neutralization point. So let us say this is a neutralization point, correct? And from the neutralization point, this is neutralization point. अभी neutralization का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ. Neutralization means we have in this reaction, in the same reaction here, we had 20 ions. 20 ions, तो कोई भी ये आयन बचा नहीं रहेगा, ये बचा नहीं रहेगा, मतलब Cl minus 20 बचा रहेगा और 20 Na plus बचा रहेगा, उतना ही. These are the leftover ones, correct? At equilibrium, at equivalent point, sorry. At equivalent point, only these two are left. Clear, everybody? Now listen. इस पॉइंट के बाद अगर और एक दो ड्रॉप भी आप ऐड कर देते हो, so what will happen? Let us say 2 more drops of NaOH you are adding, which means I'll have 2 Na plus extra and 2 OH minus extra. तो क्या हो गया? नंबर ऑफ आयंस जो कि इनिशियली हमेशा 40 होने चाहिए थे, अभी 40 से बढ़कर कितने हो गए? 44 हो चुके. एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया, सेकेंड OH माइनस आयंस बढ़ गए. दो फैक्टर से यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा. वन फैक्टर इज नंबर ऑफ आयंस गेटिंग इंक्रीज्ड. ओके, फैक्टर नंबर 1 is number of ions getting increased. Factor number 2 is OH minus ions are increasing. यार OH minus से हमेशा molar conductance बढ़ जाता है. Okay, so now what would happen? From here slowly there would be an increment, and from here onwards I can say it will be pushed. अच्छा, यहाँ पे मैंने डॉटेड क्यों रखा है? डॉटेड इसलिए रखा है कि हम लोग एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि टाइट्रेशन कहाँ पे हुआ है एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट करके ही ये पॉइंट पे रीच कर सकते हैं. ऐसे थोड़ी देर डिक्रीमेंट मिलेगा, फिर डायरेक्टली हमको यहाँ से इंक्रीज होते हुए दिखेगा. ठीक है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग थियोरेटिकली एक पॉइंट के पास अराइव होते हैं.
So this point where we have reached, and this point is equivalence point. This point is equivalence point. Tanish, we were discussing about HCl and NaOH titration. Usually titration करते तो हम लोग क्या करेंगे, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH का ग्राफ प्लॉट करते हैं. But instead of pH, now we are plotting molar conductivity versus volume of NaOH. Okay, and typically एक चीज समझ लो, that when it comes to H plus ions, उसकी molar conductance बहुत ज्यादा होता है. OH minus ions molar conductance काफी ज्यादा होता है. ये एक टेबल मैंने शेयर किया था जिसमें कि वैल्यू वाइज यू विल सी टिपिकली H plus and OH minus are more. उसी लॉजिक से हमने यहाँ पर क्या बोला है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन व्हेन NaOH इज बीन टाइट्रेटेड विद HCl, H plus का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा. देखो मैंने अज्यूम किया कि पहले 20 आयंस थे, अभी 2 आयंस H plus कंज्यूम हो गए क्योंकि आपने 2 OH माइनस ऐड किए, तो अभी बचा रहेगा 18 H plus. तो H plus जैसे जैसे कम होते जाएगा इसका वैल्यू मतलब लैम्डा वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा. वंस यू रीच इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद और एक्स्ट्रा NaOH अगर आप ऐड करते हो तो उससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं और OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर से लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा. करेक्ट? अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट केस के साथ समझ में आ जाएगा. ये जस्ट एक पहला केस था. Everybody understood that how the conductometric titration varies for this? Yeah. Yes. So you can see that before adding NaOH, conductivity of HCl has high value due to the presence of high molar conductance of H plus and high mobility of H plus ions. See the second case now. ठीक है, बहुत अच्छे से समझना. सेकेंड केस में सबको कंफ्यूजन रहता है. ठीक है, सुनो. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, मतलब इन द सॉल्यूशन आई हैव वीक एसिड और उसको ऊपर से हम लोग NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं. इमेजिन करो यार, मैंने 100 पार्टिकल्स ऑफ एसिटिक एसिड लिया. अब 100 पार्टिकल्स में से सिर्फ 98 ऑलमोस्ट 98 पार्टिकल्स वैसे ही बचे हैं. सिर्फ 2 पार्टिकल्स डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हुए बिकॉज इट इज वीक एसिड. वीक एसिड है तो कम डिसोसिएशन होगा. ये अजम्पशन है. सिंपली हम लोग ले रहे कि एक 100 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल शायद आयनाइज हो चुके हैं, बाकी 98 वैसे के वैसे पड़े हुए. ठीक है, अब टाइट्रेट कर रहे हैं. ड्यूरिंग टाइट्रेशन हमने NaOH ऐड किया. NaOH ऐड किया तो मैंने अज्यूम किया कि हर ड्रॉप में 2 आयंस 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं. तो एक ड्रॉप गिरा एसिडिक में, एसिटिक एसिड में एक ड्रॉप गिरा तो 2 पार्टिकल्स ऑफ NaOH उसमें ऐड हो गए, तो 2 Na प्लस एंड 2 OH माइनस ऐड हो गए. ठीक है, इमीडिएटली क्या होना चाहिए? Titration is all about H plus and OH minus का reaction. So immediately you would see H plus and OH minus will get instant reaction here. So this 2 and 2 will get reacted. So 2 to cancel. So ये 2 moles of water मिल गए, right? ये instant reaction हो जाएगा. Right. So this is the instant reaction you will observe. Okay. Chaitanya, are you there? एक minute. Just run. Chaitanya, are you there, beta? Chaitanya, can you hear me? Listen. So H plus and OH minus, 2 particles each. These 2 particles each connected with one another, or water mat gaya. Right. Now I could say that we had 98 particles here. 2 particles already इधर आ गए, है ना? और ये ऑलमोस्ट 0 हो रहा है. ये ऑलमोस्ट 0 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ? अकॉर्डिंग टू ली शैटलर्स प्रिंसिपल, जैसे ही अपने प्रोडक्ट कम किया तो रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड की तरफ मूव हो जाएगा, है ना?
So from this 98 particles, it might happen that one more particle will get changed, and you will get this as sorry, 2 to 3 particles, 3 particles might get changed, और ये शायद 95 बन जाए, and this might become 5 and this might become 3. Clear? Because again I have to maintain that k equilibrium value, तो immediately मुझे इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा. So कुछ अमाउंट H प्लस की तरफ बढ़ जाएगा, करेक्ट, और कुछ अमाउंट आयंस का बढ़ जाएगा और H प्लस का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, करेक्ट. अच्छा सॉरी, इतना अमाउंट में तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि जितना अमाउंट में डिसोसिएट हुआ है उससे कम ही होगा. तो 98 में से शायद 1 कम हो गया, यहाँ पर ये 97 और ये यहाँ पर 3 और ये 1 हो गया. ऐसे होगा एक एक पार्टिकल, क्योंकि 2 पार्टिकल H प्लस ले रहे हो तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ H प्लस फिर से बढ़ जाएगा. ये लॉजिक क्लियर बेटा सबको? नाउ काउंट द नंबर ऑफ टोटल आयंस. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू एडेड Na प्लस ऐड करने पर अभी सॉल्यूशन में कितने आयंस है बेटा? दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम. एट न्यू इक्विलिब्रियम आई हैव 3 आयंस ऑफ दिस, 1 आयन ऑफ H प्लस प्लस 2 आयंस ऑफ Na प्लस भी तो है, राइट? सो टोटल हाउ मेनी आयंस आई हैव? 3 plus 1 4 plus 2 6. So total how many ions are there beta? 6 ions are there. ये logic clear है सबको? Correct? In a way what happens, the number of H plus ions will hardly change. Number of H plus ions will hardly change, but total number of ions will increase because initially we had only 4 ions. Now I have 3. Now I have 3 plus 1 4 plus 2 6. Number of ions have increased. और H प्लस के नंबर ऑफ आयंस में चेंज बहुत ही कम आया है. ओके, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जस्ट बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, एकदम इनिशियल पॉइंट पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे एकदम से H प्लस कंज्यूम हो गया था, जितना था H प्लस वो कंज्यूम हो गया. सो एज इट रीचेस टू द न्यू इक्विलिब्रियम नाउ, तो यहां से आपको धीरे से ये बढ़ते हुए नजर आएगा. सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ये कुछ ज्यादा नीचे ले लो, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से. सो यहां से थोड़ा नीचे आ जाएगा और यहां से फिर वो बढ़ते जाएगा आराम से इस तरफ. बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज होगा बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड नॉट बिकॉज ऑफ H प्लस आयंस इंक्रीज. ठीक है बेटा? सो फ्रॉम हियर इट विल इंक्रीज एंड इट विल रीच टू अ पॉइंट समवेयर हियर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल शूट अप लाइक दिस और सीधा सीधा यहां से एकदम से बढ़ जाएगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? Now this point is the equivalence point. Okay, students, this point is the equivalence point. यहाँ पर what do you mean by equivalence point? It is the point when NaOH is completely consuming CH3COH. तो अभी solution में CH3 at neutralization point or at equivalence point, we will have only CH3CO minus and Na plus. और ये कितने बचे रहेंगे? This will be 100 ions and this will also be 100 ions. Have you all got that? How you are able to imagine that? And plus, suppose now I add 2 more droplets of NaOH. So I'll have 2 Na plus and 2 OH minus. So 2 OH minus and 2 Na plus. So total number of ions क्या हो रहा है बेटा? So एक तो यहाँ पर 102 anions, 102 cations. Okay, cations, anions and 102 cations. So number of ions have increased. Second thing, the OH minus concentration started increasing. So now if you keep adding NaOH, because of both factors, one, ions are increasing and second, NaOH are increasing, there is a drastic shoot up in the value. Okay, so this is how you will see conductometric titration happens for acetic acid and NaOH. Now doubts first and then I'll go to the next one. How many of you understood? Just give me, raise your hands.
सर वो स्टीपली क्यों चेंज हुआ, वो नहीं, वो पार्ट टू नहीं फैक्टर्स समझा। बेटा, स्टीपली इसलिए चेंज हो रहा है, एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, राइट। यस, सेकेंड थिंग, OH माइनस के आयंस बढ़ गए ना, और आपने क्या बोला, तो H प्लस और OH मोबिलिटी माइनस बढ़ेगा। दोनों बढ़ेंगे तो एक्सेप्शनली उनका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, यस सर। राइट। तनिष, डाउट बेटा? Tanish, could you hear me? You can just put a message, beta. Chaitanya, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Have you understood the logic, beta? Sir, I do not even know what you're teaching right now because I just joined like few minutes ago. Ah, that's what I said. I was talking about something तो called मैं रिकॉर्डिंग में ये वाला conductometric इनिशियल वाला पार्ट देख ये पूरे यही है बेटा दी फर्स्ट, क्योंकि एक कोई भी एक समझेगा तो बाकी क्लियर हो जाएगा। मैं बेसिक आइडिया देता हूँ चैतन्य, लिसन। वी आर डूइंग टाइट्रेशंस, बट इंस्टेड ऑफ calculating pH, now we are checking how the lambda m, that is molar conductance, changing. Okay, we have related one thing: molar conductance is directly proportional to the number of ions. Molar conductance is directly proportional to H plus ions and OH minus ions. A solution which has more number of H plus ions or more number of OH minus will always have very high molar conductance. Or a solution which has more number of ions in general also will have more molar conductance. Is this logic clear? Just on these two logics only we are making these titrations done. So initially when I took acetic acid and treated with NaOH, there is a small decrement in the value because instantly, initially the whatever H plus was there, it was consumed by the OH minus. And from here onwards, due to Le-Chatelier's principle, immediately again the reactant will start pushing towards product, and H plus and ions will start increasing. So due to that increase, you will see again the molar conductance started increasing. And after the titration is done, that is at the neutralization point, on adding extra amount of NaOH, again it has shooted up. I'll show you now with the third example. Abhi hopefully clear hona chahiye. Next, I'm doing a reaction between weak acid strong acid mixture with NaOH beta. Weak acid strong acid mixture matlab kya hai? I take an example where I have HCl plus CH3COOH acid mixture. This I'm titrating with NaOH, which is a strong base. Now tell me, on adding NaOH, NaOH will first react with acetic acid or HCl? Anybody? HCl. HCl. The reason is pretty simple. It is a HCl. strong acid. Yes. It is a strong acid. That is why it is happening. Now let me take some values for HCl and CH3COH for our convenience to understand. Imagine I have 50 particles of HCl and 50 particles of CH3COOH, which means how many ions initially were present? Initially, I may have 50 H plus ions, 50 Cl minus ions. Okay. And here, CH3COH will dissociate very less in the presence of HCl. Correct? ये तो बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, तो आई एम अज्यूमिंग इनिशियली जीरो ही होगा, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने ये वीक एसिड तो क्या ही डिसोसिएट करेगा, है ना। सो इनिशियली दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, सो इनिशियली इट इज मोर और लेस लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन। जब तक कि HCl बचा है, वी कैन अज्यूम कि एसिटिक एसिड हार्डली कुछ डिसोसिएट होगा, उसके वजह से मोलार कंडक्टेंस कुछ दिखेगा ही नहीं, ये अज्यूम कर सकते हैं। So now I can say that if I add one drop, I'm saying one drop is equivalent to 2 NaOH particles. Acha, 2 NaOH particles means I'm adding 2 Na plus and 2 OH minus ions. So tell me, as soon as I add one drop, now what will happen to the number of ions? We know that this OH minus and this H plus both will get reacted.
So I will be left out with 48H plus 2 Na plus 5 50. This is 50 Cl minus. So I'll have 50 Cl minus. अच्छा, टाइट्रेशन के पहले भी 100 आयंस थे. टाइट्रेशन मतलब throughout the titration also it is remaining it as 100 ions only. But only thing what we are observing that the H plus ions का concentration कम होते जा रहा है ना. Okay, Tanish, listen. Okay, Tanish, just focus on this. This is a mixture of the first two cases. Okay, so इधर से आपको clearly समझ में आ जाएगा. सर बट Imagine, यहाँ पे OH माइनस है ना, तो आप बस इतना कह सकते हैं वो कैसे अफेक्ट करेगा? Like instead of when only H plus was there, how different does OH minus mean? देखो, the minute you add OH minus बचा ही नहीं है, वो limiting है ना बेटा, उसका Yeah, sir. रोल अभी तक आया ही नहीं, right? Yeah, तो जितना भी OH माइनस ऐड करे हो सीधा सीधा H प्लस के साथ इंस्टेंटली रिएक्शन कर रहा है, तो उनकी वजह से कोई Okay. कंडक्टिविटी नहीं आ रही. ठीक है, oh, राइट. तो H प्लस 2 OH माइनस 2 H प्लस रिएक्ट कर गए, बचा हुआ है 48 H प्लस 2 Na प्लस एंड 50 Cl माइनस. तो भाई इनिशियली जितने आयंस थे अभी भी तो आयंस उतने ही हैं, तो आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ा. बट H प्लस के नंबर ऑफ आयंस में फर्क पड़ गया कि थ्रू आउट द टाइट्रेशन जब तक कि वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक नहीं आता है H प्लस के आयंस कम होते जा रहे हैं. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट इनिशियली देयर इज अ डिक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ आयंस, राइट. अब यहां से डिक्रीमेंट होते होते इस पॉइंट से एक फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है. वेल, इसको न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं कहेंगे बिकॉज अभी भी तो H प्लस बचा ही होगा, मतलब अभी भी एक वीक एसिड बचा ही है. बट फर्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे. सो लेट अस इमेजिन वी हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट. दिस इज द पॉइंट वेयर HCl इज कंप्लीटली, मतलब H प्लस इज कंप्लीटली ओवर द एंड द H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl इज ओवर. तो H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl इज ओवर. नाउ व्हाट इज लेफ्ट ओवर? लेफ्ट ओवर इज CH3COOH. अब CH3COH क्योंकि H प्लस नहीं है, ये 50 में से उसके पास हो सकता है CH3CO माइनस एंड H प्लस. यहाँ पर 48 आयंस इसके हो और 2 and 2 इसके हो. सो 2 and 2 इसके हो और ये 50 में से 48 अनडिसोसिएटेड हो सकते हैं. ठीक है, एंड जैसे ही अपने एक ड्रॉप डाला अभी, सो एंड आई सेड 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 2 NaOH. अब जैसे ही नेक्स्ट 1 ड्रॉप डाला आपने, तो यहाँ पर 2 Na प्लस 2 OH माइनस आ जाएगा. So you can see that this H plus ions and this OH minus both will undergo reaction. So this will result in making CH3COOH as 48 CH3CO minus, which is 2 plus H plus almost becoming 0. Or instead of H plus now we have 2 Na plus. But according to Lee-Shatler's principle, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इमीडिएटली रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा. सो इंस्टेंटली देयर विल बी चेंज इन इक्विलिब्रियम. सो ये 48 में से थोड़े आयंस फिर कम हो जाएंगे. इसमें से 48 में से एक छोटा पार्ट कम हो जाएगा, मे बी लेट अस से 2 आयंस कम हो गए. सो दिस विल बिकम 46, दिस विल बिकम 4, H plus will become 2 and 2 Na plus is already present, right, and this will become 4 now. तो अभी सिचुएशन क्या हुआ? यहां से जब स्टार्ट किया हमने, यहां से जब स्टार्ट किया टाइट्रेशन, वेयर यू हैव नाउ अगेन ट्रीटिंग CH3COH विथ NaOH, तो नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग बिकॉज इनिशियली आयंस वेर 4, 2 and 2, ये नंबर ऑफ आयंस थे. आफ्टर द टाइट्रेशन इट हैज बिकम 4 plus 2 plus 2, ऑलमोस्ट 8 बन गए. 8, 7 यही रेंज में रहेगा, बट मोर देन 4 रहेगा. Clear everybody? So number of ions have increased now. Clear? So like from here, what would happen? Slowly there would be increase in the value here, but this increment is not high as that of decrement here. ये gradual increment रहेगा because here there is no exceptional rise of H plus ions.
so this will be relatively small. सर पहले थोड़ा डिक्रीज नहीं आना चाहिए? हाँ बेटा, वो कब होगा पता है? जब ओनली कॉन्सेंट्रेशन, ये ना ये ऑब्जर्व किया जाता है व्हेन यू हैव प्योर फॉर्म ऑफ CH3COH। जब वो मिक्सचर में हो ना, तो उसका अमाउंट पहले से मैं अज्यूम कर रहा हूँ 0 है ना बेटा, अच्छा ओके करेक्ट। तो ठीक वो है। वाला वैल्यू इतना ज्यादा दिखेगा नहीं। तो आपको Okay. जनरली टाइट्रेशन में यही ऐसे ही दिखाना है कि इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा इंक्रीज होते हुए, ठीक है। ठीक है सर। ये वाला पार्ट तभी दिखाओगे तब वो प्योर फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओनली एसिटिक एसिड हो, मिक्सचर ना हो, ठीक है। तो देखो बेटा, जेई में ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, अभी ये काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। कभी कभी ये नहीं दिया है, कभी कभी ये दिया है, ठीक है, बट दोनों आपस में नहीं आए। यहाँ ऐसा नहीं आया कि ये भी दिया है और कभी कभी स्ट्रेट अवे ऐसे दिया है, दोनों नहीं दिए, ठीक है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर वीक एसिड प्योर फॉर्म है और NaOH के साथ ट्रीट करो तो इनिशियल थोड़ा डिक्रीमेंट, फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है, ओके। अभी जेई 2016 में आया है, 14 में आया है, सो एवरी टाइम इट हैज बीन कम, ये डिक्रीमेंट के साथ ही दिया है, तो आपको उसका टेंशन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से वी कैन क्लियरली मेक आउट, ठीक है। सर वो Yes, sir. स्टार्टिंग में क्यों डिक्रीज होता है सर? क्या बेटा? सर स्टार्टिंग में क्यों डिक्रीज होता है सर? स्टार्टिंग में क्यों डिक्रीज होता है? देखो, हाँ, सर। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए टाइम लगेगा ना या इनिशियली। सर। तो जैसे ही H+ कम हो जाता है सॉल्यूशन में, इंस्टेंटली OH- रिएक्ट कर जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम रीच होने को थोड़ा टाइम लगेगा, उतने टाइम में आपको कंडक्टिविटी डिक्रीज होते हुए दिखेगी, ओके। अच्छा सर, बट उसके बाद वो जब इंक्रीज होता रहेगा तब CH3COH और डिसोशिएट होता रहेगा ना सर? हाँ, फिर डिसोसिएट कंटिन्यूअसली होते रहेगा फिर, और फिर बढ़ते रहेगा उसकी वजह से? हाँ फिर बढ़ते रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, या ठीक, राइट। अब देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां तक तो हमने लर्न किया कि ये बढ़ गया, करेक्ट। अब यहां से फिर से अब ये पॉइंट आएगा जहां पे वो टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा। नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर द टाइट्रेशन इज एंडेड, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स नाउ आई कैन से कि एक ऐसा शूटअप आ जाएगा। अभी यहां से शूटअप हो जाएगा, क्यों शूटअप होगा बेटा? अब यहाँ से OH पॉइंट माइनस शूटअप हो रहा है इंक्रीज क्योंकि होगा और OH माइनस का नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन होगा। इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। अभी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और ये पॉइंट है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। ग्राफ क्लियर है बेटा? तो कैन आई से दैट ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर है, ये और इसको मिक्स कर दो तो यही आएगा, है ना। देखो ध्यान से, अभी बताओ समझा कि नहीं। सर कौन से पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं? मतलब दो द पॉइंट्स पॉइंट है वेयर इसमें? देयर इज नो H+ and OH- लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, अच्छा ओके सर। where it has been completely neutralized. Only salt and water होना चाहिए। Done? Everybody clear on this point? Okay. See the next relation. आपको मोस्टली ना यही 3 रिलेशन के केसेस पे आते हैं, बाकी रिलेशंस देखो। अच्छा, इसमें जो मैंने वीक एसिड ये जो मिक्सचर दिया है विथ NaOH, इसको क्या मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ? ध्यान से देखना, क्वेश्चन कितना एकदम अच्छे से बन के आया जेईई एडवांस में। इसने ऐसे दे दिया बेटा, H2S प्लस NaOH, बोला कि अब बता करो कि इसका टाइट्रेशन कैसे होगा। बोला कि इसका टाइट्रेशन बताओ कैसे होगा। यार ये इसको अज्यूम कर सकते हैं ना, H2S को क्या अज्यूम कर सकते हैं हम लोग? H2S को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज मोर और लेस लाइक HS माइनस और H2 माइनस ये आयंस है इनिशियल, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। सॉरी H2 माइनस छोड़ो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ले सकते हैं और इसको वीक एसिड की तरह ले सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब इनिशियली आप एक वीक बेसिस, ये दोनों के कंपैरिजन में पहले आप किसके साथ रिएक्शंस एक्सपेक्ट करोगे? H2S में, और जो बाकी बचा हुआ है HS माइनस उसके साथ आगे रिएक्ट कर जाएगा। तो अब इसका ग्राफ देखो, आप खुद से एनालाइज करके देखो कैसे होना चाहिए कि इनिशियली क्योंकि H2S है, करेक्ट, क्योंकि ये वीक है तो इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, ऐसे थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। अब ये पॉइंट के बाद फिर से अभी HS माइनस के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ से और थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, इधर से अभी और थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा इस तरफ ऐसे, करेक्ट। अब यहाँ से और एक पॉइंट आ जाएगा इधर, जहां से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो अभी ये क्या हो गया बेटा?
ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इक्वलेंस पॉइंट है, जहाँ पे H2S HS माइनस कोई भी बचा नहीं। सर H2S तो स्ट्रॉन्ग है ना, H2S वीक एसिड है बेटा, बहुत वीक एसिड है। तो मतलब नहीं वीक समझा एसिड, ये। देखो बेटा वीक एसिड में हमेशा कंडक्टिविटी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आयंस बढ़ रहा है ना। हम्म, तो इनिशियली इसको मानो ही मत, ये नहीं है, सिर्फ H2S है, ठीक है। whenever you take H2S beta, H2S will always be in the dissociated form of HS minus and H plus, right? तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियली मानो कि सिर्फ H2S का अमाउंट बचा है, मतलब H plus is coming only because of H2S and not because of HS minus. HS minus का डिसोसिएशन बहुत ही कम है, इसके वजह से कोई भी आयन H plus का नहीं आ रहा है, ये अज्यूम कर रहे हैं इनिशियली। देव ठीक है, यस तो सर। अभी मैं बोल सकता हूँ ना कि इनिशियली भाई सिर्फ H plus है, वो भी H2S की वजह से आ रहा है। तो जब तक H2S खत्म नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि H2S वीक एसिड है तो थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीमेंट रहेगा, और उसके बाद HS माइनस और थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीमेंट रहेगा, बट उसके बाद शूट अप हो जाए। अच्छा हाँ। बस तो यही लॉजिक्स आप यूज करने का। सपोज अगर मैंने उल्टा दिया, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया, सर एक डाउट है, H2SO4, हाँ बेटा एक मिनट, H2SO4 और NaOH दिया, तो अभी बताओ अभी कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि अभी H2SO4 स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है, इट इज सेम एज HCl, तो पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी HSO4 माइनस बचा है, अच्छा सर हाँ उसके साथ रिएक्शन होगा, फिर NaOH। समझ बोलो बेटा, सर इसमें इनिशियली डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? इनिशियली डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये वीक एसिड था, वीक एसिड और NaOH के साथ ट्रीट करते समय क्या ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, H2S वाले में H2S ऐसे ही बिहेव कर रहा है ना, इट इज लाइक HS माइनस को भूल जाओ फॉर इंस्टेंस, HS माइनस है ही नहीं, तो सर H2S में H2S क्या और HS माइन, अच्छा सर पर ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर वाला कंडीशन होगा ना? ये तो हाँ वीक वही एसिड तो। और स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इनका कॉम्बिनेशन है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये इनिशियल वाला पार्ट बहुत छोटा है, ये वाला पार्ट, ये इसको भूल जाओ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। यहाँ से ओ टाइट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छा यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इनिशियली थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, हाँ, और बढ़ किस लिए रहा है, नंबर नंबर ऑफ ऑफ आयंस आयंस। की वजह से। तो सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड टू दिस वन आल्सो। हाँ सर, तो ये बेसिकली पहले एक वो वीक एसिड के साथ रिएक्शन है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन है, नहीं, उसका HS माइनस कॉम्बिनेशन। भी वीक एसिड ही है, उसके बाद भी वीक एसिड है, फिर से और थोड़ा सा रिएक्ट हो गया उसके साथ, उतना ही। हाँ वही, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड सर, हम्म, थैंक यू सर। सर एक अनरिलेटेड क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर ये संडे को कौन सा टेस्ट रखने वाले हो? रिडॉक्स, नहीं नहीं संडे। संडे को ही रिडॉक्स है ना बेटा। अच्छा सॉरी, आज क्या दिन है, संडे तो आज कल ही है ना। सैटरडे है सर, नहीं नेक्स्ट संडे मतलब। अभी नेक्स्ट संडे तक अभी पहले ये डिस्कस कर सर लेते। क्योंकि पढ़ना चालू कर रहा था इसलिए। अभी कर रहे हैं क्लास टाइम पे। नहीं सर बाद में, इसलिए। नेक्स्ट संडे हम लोग बेंजीन करेंगे, ओके, कंप्लीट ओके बेंजीन। सर। ठीक है, चल अभी इस पे फोकस कर हमें। यस सर। हाँ, यहाँ तक समझा बेटा सबको, यही वाला केस देखते हैं। ये है प्रॉपर डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सॉल्ट और सॉल्ट रिएक्ट हो रहा है और उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, लाइक AgNO3 इज बीन ट्रीटेड विथ KCl, जिसमें से AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है और KNO3, इट इज एग्जैक्टली लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन जैसा ही है। देखो ध्यान से देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जैसा ही है, ओके। सो कैसे बन रहा है, AgNO3 100% डिसोसिएटेड रहेगा, करेक्ट। सो इनिशियली सोचो AgNO3 है सॉल्यूशन में और ऊपर से आप KCl ऐड करते जा रहे हो, तो KCl इनिशियली लिमिटेड है और AgNO3 में से थोड़ा थोड़ा नंबर ऑफ आयंस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कैन आई से दैट इनिशियली सपोज यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इधर लेता हूँ, या इनिशियली इमेजिन दैट Ag plus
Ag प्लस और NaOH मेरे पास 10 पार्टिकल्स है और उनमें से ये 1 पार्टिकल मैंने ऐड किया, तो अभी ये 9 हो जाएंगे, ये 10 वैसे ही रहेगा, ये 1 वैसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 ये बन जाएगा और दिस विल बी लेफ्ट विथ 1 एंड दिस विल बी 1, करेक्ट? यही रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? व्हिच मींस ये इनिशियली नंबर ऑफ आयंस कितने थे बेटा? नंबर ऑफ आयंस कितने थे? 20, करेक्ट? जिसमें से 10 कैटायंस थे, 10 एनायंस थे। अभी कितने आयंस बचे? 9 प्लस 1, 10 कैटायंस और 10 एनायंस। सो नंबर ऑफ आयंस में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, No, सिर्फ एक ही चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? Ag प्लस गॉट रिप्लेस बाय K प्लस, इतना ही हुआ ना। Ag प्लस गॉट रिप्लेस बाय K प्लस। नाउ except H plus, except H plus, Na plus, Ag plus, K plus, ओके, ये जितने भी आयंस है मोनोवैलेंट, Cs plus, लिथियम प्लस, इन सब की कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सो वी आर टेकिंग इट अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव बेटा। हाँ, डिफरेंस रहेगा ही, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाइज इफ यू लुक एट इट, लिथियम का मूवमेंट सबसे स्लो है, बट एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, टाइट्रेशन इज अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, करेक्ट? उस स्केल में आप चेक करोगे तो H प्लस के अलावा इफ यू टेक Ag प्लस, K प्लस, Na प्लस, लिथियम प्लस, करेक्ट, सीजियम प्लस, ये सारों को अगर आप कंपेयर करोगे तो उनमें आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। ओके, सो इन दैट केस कैन आई से इनिशियली जब तक कि टाइट्रेशन खत्म ना हो जाए 20 आयंस चलते ही रहेगा, वही 20 आयंस है, सिर्फ Ag plus is replaced by K plus. So what we can say, initially there is hardly any change in the this one conductivity. तो ये ऐसे ही रहेगा, hardly it will change. And after this point, I will reach to a neutralization point here. तो अभी एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया जहां पे पूरा का पूरा AgCl बन चुका है, करेक्ट? So what is left here now at neutralization, at equivalence point, we will have 20 K plus and 20 NO3 minus. Now if I had one more drop, or one more drop मतलब 2 K plus and 2 NO3 minus, तो क्या बन रहा है? Number of ions are increasing now. That's it. Only number of ions are increasing. Clear students? अब सिर्फ number of ions increase हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Shoot up हो जाएगा फिर से. So now you will see that slightly मतलब there is sufficient shoot up here in terms of conductivity. This is the graph for AgNO3 case. In fact, any titration where there is a precipitation happen. किसी को डाउट बताएंगे? Everybody understood that? सर तो वो रिएक्शन लिखते वक्त पता होना चाहिए कि K प्लस और NO3 माइनस अलग अलग रहेंगे प्रोडक्ट्स। हाँ बेटा, मैंने क्या बोला आपको? H प्लस और OH माइनस ही एक्सेप्शन, बाकी सारे केसेस में आप सेम ले सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर चार्ज डिफरेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका Ag प्लस एक्सचेंज हो चुका है Ca+2 के साथ, Ca+2 का रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास चार्ज ज्यादा है। समझ में आया? यही क्वेश्चन में जैसे आपने पूछा, मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे गिवन AgNO3 प्लस CaCO3 सॉरी CaCl2 is becoming AgCl plus CaNO3 twice. This is the overall reaction. I'm coming to your case beta. मतलब what happens when the charge is increased. Initially इसके पास हमारे पास 10 Ag plus है, 10 NO3 minus है, और आपने एक 2 CaCl2 डाल दिया, ठीक है? तो you can see ये 1:2 रेशियो में है. So 1 CaCl2 will require 2 AgNO3. 2 के लिए 4 रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 कम हो जाएगा, 6 रहेगा. NO3 माइनस तो वैसे ही रहेगा, एंड Ca+2 कौन सा? Ca+2 आयंस 2 हो जाएंगे, ठीक है, और 2 Cl माइनस रह जाएगा, राइट? यस। क्लियर?
नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू द नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ आयंस को देखो कितने हो गए बेटा. यहाँ पर इनिशियली कितने आयंस थे? 10 + 10 20 थे. 10. हाँ 20 थे. अभी कितने हो गए? 6 + 2 8 प्लस ये कितने हो गए? सॉरी Cl माइनस नहीं बचा, सिर्फ 2 Ca + 2 बचा है ना, उतना ही, यही बचा है राइट. तो कितने हो गए? 18. 6 + 2 8 + 10. तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? कम 18. हो गया. बट Ca + 2 थोड़ा हाईली कंडक्टिंग है, तो यहाँ पे एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं ना फैक्टर्स. हाँ करेक्ट. क्योंकि अब नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं बट चार्ज बढ़ रहा है राइट. सो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को कॉम्पोजिट कर जाएंगे. तो अगेन ग्राफ विल गेट Straight ऑलमोस्ट द line. सेम. अब क्लियर है? इसके लिए मैंने उसको Yes. जनरलाइज किया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ KCl के साथ, CaCl2 के साथ भी ऐसे ही हो जाए ऑलमोस्ट. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट? ये भी आ चुका है जेई में. ओके ये अभी रिसेंटली मेंस में आया था. तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्राफ्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है ग्राफ्स. ओके आपको सिर्फ ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने, which is the correct graph. Clear everyone? Now this much is what is being proposed as per NCERT, but ये थोड़े से एक्स्ट्रा वाले. देखो weak acid weak base होगा. In case if you have weak acid weak base, what will happen? Weak acid weak base initially CH3COH है. CH3COH we have learned it like वो धीरे से बढ़ता है. करेक्ट. वो ऐसे हो जाएगा ऑलमोस्ट. इससे पहले जब जैसे हमने देखा था ऑलमोस्ट वैसे होगा. थोड़ा सा इनिशियल डिक्रीमेंट होगा, फिर वहां से वो बढ़ते जाएगा. करेक्ट. यहाँ से वो ऑलमोस्ट ऐसे बढ़ जाएगा. फिर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा. न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद नाउ यू विल हैव ओनली NH4OH which is a weak acid. correct. Sorry, which is a weak base. So almost that remains constant. बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा बिकॉज NH4OH is a weak base. उससे आयंस बहुत ही कम होंगे. सो यू विल हैव नॉट मच ऑफ एन इंक्रीमेंट हियर. सो इनिशियली जब तक नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तब तक थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, बट उसके बाद कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए. ओके आप बोल सकते हो सर थोड़ा तो OH माइनस बढ़ रहा है राइट. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर. दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर ऑन अ ब्रॉडर स्केल. So that's why we can say कि at the end almost it gets similar kind of molar conductance. I hope all of you understood this point, right? इसी केसेस को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपको. एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आप इजिली कर सकते हैं. अभी देखो उल्टा बताएं. NH4OH सॉल्यूशन में है और स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड करते जा रहे हो. Anybody tell me how the graph looks like? सर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड जैसा ही दिखेगा ना? Exactly वैसे ही है. पहले हमने हाँ. जैसे किया था स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, वही केस अभी सेम है बिकॉज अगर आई एम यूजिंग वॉल्यूम ऑफ HCl ओनली राइट. मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही तो यूज कर रहे हैं हम लोग. सो देयरफॉर इनिशियली थोड़ा सा कम होगा, फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा ऐसे. न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा इधर कहीं पे और वहां से इस पॉइंट से फिर शूट अप हो जाएगा ऐसे. बस दिस इज द ग्राफ यू शुड लुक आउट. ठीक है. हेलो सर. यस बेटा. सर बट HCl हम लोग जैसे डालेंगे वैसे ही वो डिसोसिएट होएगा ना सर? HCl तो अभी लिमिटिंग में है ना. H प्लस पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा OH माइनस के साथ. थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो या ओके सर. है ना. वहां पे हमने HCl, वहां पे हमने CH3COH और NaOH लिया था. यहाँ पे हम लोग NH4OH और HCl ले रहे हैं. बस यस. वो आयंस के टर्म को उल्टा कर रहे हो उतना ही. या ठीक है. Now this is not in our syllabus, just I will relate the terms just for our convenience कि समझने के लिए कि ये मोलर कंडक्टेंस किससे रिलेट हो रहा है. देखो नॉर्मली मोलर कंडक्टेंस लैम्डा is defined as the charge of the ion multiplied by the ionic mobility. जो स्पीड हम लोग जिसको कहते हैं that is ionic mobility mu.
So charge multiplied by ionic mobility is defined as molar conductivity. ठीक है, अब ionic mobility mu क्या होता है? It is the speed of the ion, absolute speed of the ion with respect to the potential gradient. लेंथ के साथ उसका ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है. ग्रेडियंट मीन्स ये चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ. ये बेटा, so this is called potential gradient here. So ionic mobility is equal to velocity of ion divided by potential gradient here. बट ये सब हमको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए. देयर इज वन टर्म इट माइट पॉसिबली जेई मेंस में टच हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर. ट्रांसपोर्ट नंबर. सो ट्रांसपोर्ट नंबर टेल्स अस दैट what is the amount of conductivity of cations with respect to the total ions, and what is the amount of current of or the conductivity of anions with respect to the total ions. अब ये यूजुअली करंट में डिफाइन करते हैं दैट द अमाउंट ऑफ करंट विच इज डन बाय पॉजिटिव आयंस बाय द टोटल करंट एंड द अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस का करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट. कैन यू सी इट इज जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शंस. ये बिल्कुल मोल फ्रैक्शन जैसा है. मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव आयंस को कंपेयर कर रहे हो. सिमिलर, जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन को लिए नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, यहाँ पे करंट यूज करेंगे हम लोग, उतना ही. एंड दोज आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर्स. सो टी प्लस एंड टी माइनस. क्लियर? सो ट्रांसपोर्ट नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ current, and beta current directly relates with the speed of the ions. So we can say speed of cation divided by speed of cation plus anion. So ये cation है, ये anion. ठीक है? Clear everybody? So we can say now this cation speed, right? Because you can see that speed is nothing but mobility, right? मतलब ionic mobility है. ये ionic mobility है. अच्छा, आयनिक मोबिलिटी को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमको? मोलार कंडक्टेंस आ जाता है. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट मोलार कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड मोलार कंडक्टेंस ऑफ एनायंस. तो क्या मैं ये स्पीड को सीधा सीधा मोलार कंडक्टेंस के साथ लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो, T प्लस आयन विच इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल मोलार कंडक्टेंस. ओके, मोलार, ये नहीं है, सॉरी, ये अलग है. T plus is equal to molar conductance of cations by molar conductance, total molar conductance. तो क्यों मैंने रिलेट किया है ट्रांसपोर्ट नंबर से? क्या मैं कह सकता हूं इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर इज मोर विच मीन्स द मोलार कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस इज मोर. सो हम लोग सीधा सीधा इन दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, T प्लस एंड T माइनस को कंपेयर करेंगे. सो अगर T प्लस ज्यादा है तो करंट किधर फ्लो हो रहा है बेटा? एवरीबॉडी, मतलब पॉजिटिव आयंस आर रीचिंग फास्टर कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिव आयंस. देखो यहां से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोड्स लिख देता हूँ, इधर से इधर इलेक्ट्रोड लिख देता हूँ. ये पॉजिटिव आयंस है बेटा और ये नेगेटिव आयंस है. ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस आर रीचिंग फास्टर कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिव आयंस. तो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है और रिजल्टेंट भी उस तरफ ही है ना, तो रिजल्ट इज ऑन दिस साइड ओनली. सो व्हाट आई कैन से दैट द करंट फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है. सो आई कैन से दैट करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव with which is getting more deposited, cations getting deposited or anions getting deposited? Cations, with cations getting more deposited or decomposed, sorry, decomposed को क्या बोले? liberated. ठीक है. On the other hand, if we have T plus less than T minus, current flow अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगा, but because ions are moving from this side now, resultant ions will be on this side. So what we can say, that we will say
that positive charge ions are not reaching much, but the negative charge ions are reaching faster. So we can say current flow still will be from positive to negative with anions getting more deposited. So transport number gives a lot of idea about which ions are getting easily dissociated or decomposed or liberated. Okay, ions या तो deposit हो जाते हैं if it is metal ions. अगर कोई gaseous ions है, मतलब if there are H plus like ions, they will get liberated as gases. Okay guys, any doubt in this point now? सिर्फ आपको ये रिलेशन याद रखना है बस, ये सब डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपको. What are all this? Just learn what is how to relate transport number with molar conductance. Done, beta. Yes. Right. This was the last part of electrochemistry. What we call it as conductometric titrations. Okay. So just go through that once.